Very good morning, student. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay. See, we have started with the inflation, and then what we have seen, when the inflation is happening, at that time we are assuming in the sense, like we can say that the purchasing power of money is being falling down. Okay, so value of money will going to get fall when the prices are increasing. So what is inflation, student? थोड़ा याद करो, मुझे बताओ. What do you mean by the inflation? हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट decrease in इकोनॉमिक्स के the पॉइंट ऑफ व्यू बोल. हाँ, यस बोलो. decrease in the purchasing power of the money is called inflation. हाँ, डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी, दैट विल कॉल एज द इन्फ्लेशन. एकदम सिंपल टर्म में बोलना है, अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, और वी कैन से द persistent increase in the general price level will going to call as your inflation. तो प्राइजेस बढ़ना, उसके बाद में what we can say value of money कम होना, purchasing power कम होना, so that all situation indicates that there is an inflation in the economy. Okay. Then causes of inflation we have started, and under causes of inflation we have seen demandful inflation. So what was the demandful inflation? कोई बता पाएगा मुझे? ये जो inflation ये किसकी वजह से हो रहा था? Why the demandful Increase inflation was in the happened? income. Yes, Ani? Increase in income by different sources. Okay, increase in income by different sources. So as income is increases, उसके वजह से क्या increase हो रहा था वहाँ पे? Demand. Yes, demand was increasing, and therefore it was called as demandful inflation, because income increase होने की वजह से prices बढ़ रहे थे, and therefore the demand, actually income increase होने की वजह से demand बढ़ रहा था, and therefore prices were increasing. So we are saying it as a demandful inflation. Then we have seen with the help of diagram also. Now today we have to start with the cost push inflation. Okay, so inflation, you know the meaning of inflation. There is an increase in the price level, but here we are talking about the cost push. कॉस्ट मतलब क्या? खर्चा. ठीक है, पुश करना मतलब वहां पे ज्यादा होना. जब खर्चा ज्यादा होता है तो प्राइजेस भी बढ़ेंगे. यू ऑल एग्री विथ मी, स्टूडेंट? यस, यस और नो? Yes, ma'am. तो ये जब हम लोग ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इज इट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है? Producer point of view. यस, इट इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, कि प्रोड्यूसर कॉस्ट के हिसाब से प्राइस डिसाइड करता है. यहाँ पे कंज्यूमर जैसे डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से कुछ नहीं रहेगा. एवरीथिंग विल बी डिपेंड अपॉन हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड एज पर दैट देयर विल बी द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल. तो ये इसका सिंपल मीनिंग है समझने के लिए. ओके, नाउ विल स्टार्ट हियर व्हाट दे हैव गिवन. Inflation need not necessarily be due to an increase in demand. Prices may increase even when demand does not increase. It is also possible that prices may increase even when an economy experiences a decline in demand. Here, the main cause is an increase in cost, increase in the prices of inputs, including labor, then increase in the profit margin by the business firm, and the monopsony in factor market push up prices as they are in a position to influence the supply price. So basically, cost increase होने का reason क्या रहता है? So the first one here, increase in the prices of input. So input exactly मतलब वहाँ पे क्या रहेगा? Input it means what? So input it means the first thing there will be increase in the labor increase होगा, तो obviously वहाँ पे उनको salary के पीछे ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा. So or we can say increase in the salary of the labor also. That we can also say. Okay. Then the increase in profit margin. अगर जो प्रोड्यूसर है उसको लगता है कि नहीं, प्रीवियसली आई यूज्ड टू अर्न 5% ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन, नाउ आई हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन, तो उसके हिसाब से आई विल गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस लेवल आल्सो. ओके, सो व्हाट दे विल गोइंग टू डू हियर, व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रॉफिट मार्जिन, समवॉट कॉस्ट भी, अभी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे. उसके बाद में नेक्स्ट है कि मोनोप्सोनी इन द फैक्टर मार्केट. मोनोप्सोनी इन द फैक्टर मार्केट, इट मींस व्हाट, कि वॉट एवर रॉ मटेरियल यू रिक्वायर, वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर उसमें बढ़ जाएंगे, मतलब फैक्टर मार्केट में अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो दैट विल आल्सो इंक्रीज द प्राइस. एक मिनट सुधर. Okay, so that will also going to increase the price. Now next one here, supply shocks such as decline in food grain supply due to monsoon failure, oil crisis experienced in 1970s, and thereafter due to crude oil cartel, that is OPEC, shortage due to natural calamities may affect the cost of supply. Okay, so what they are saying here कि जैसे कि हम लोग सप्लाई की बात करेंगे, जब मानसून खराब रहता है, बराबर से बारिश वगैरह नहीं आता है,
तो उन्होंने कहा है कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सप्लाई द फूड ग्रेन ऑल्सो, तो मतलब उतना क्वांटिटी नहीं बन पाता है। और जो भी है सो दैट मतलब वॉट एवर मनी द फार्मर हैव स्पेंड ऑन द फुल प्रोडक्शन, मतलब वो पूरा कल्टीवेशन के लिए उतना उसको रिटेन नहीं होता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो भी वो कमोडिटी जब सेल करेगा तो वो ज्यादा प्राइस पे ही सेल करता है। वन मोर थिंग दे हैव गिवन हियर, वन एग्जांपल हियर, ऑयल क्राइसिस के बारे में उन्होंने बताया 1970s का। ठीक है, तो ऑयल क्राइसिस वेर ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटी, और इसके वजह से क्या होता है, दैट विल गोइंग टू अफेक्ट द कॉस्ट सप्लाई। तो व्हाट दे आर सेइंग कि कॉस्ट कब बढ़ता है, कि एक तो रहता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर कुछ चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ओपेक का दिया है, कार्टेल का, कि अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होता है कि इतना टैक्सेस लगेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा, देन अगेन ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ पे खर्चा बढ़ा के रखेंगे। So if this kind of a thing happen when the policy changes, so it will also going to increase the cost of production of the business firm, or we can say of the producer. So that will lead to increase in the cost. Otherwise natural calamities हम लोग ले सकते हैं। natural calamities में क्या होता है कि whatever money you spend on that production, वो उतना प्रोडक्शन तुम लोग क्रिएट नहीं कर पाते हो, तो आपका बहुत ज्यादा लॉस होता है एज अ प्रोड्यूसर। तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए यू विल गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ योर कमोडिटी। So these are all the reasons, like because of the cost of increase in the cost, the prices are increasing. Under the above circumstances, same quantity of goods and services or even the reduced quantity is supplied at a higher price due to increase in the cost. Supply curve shift to the left with a new equilibrium with the higher prices. So what they are saying here, supply curve के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे डायग्राम कि supply curve राइट साइड में स्लिप हो रहा है कि जैसे prices, this is all because of the increase in the prices, or that prices have increased because of the cost। ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में देती हूँ कि ये कैसे हुआ करके। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंट कॉस्ट पुश फैक्टर, कि किन किन चीजों के वजह से इंक्रीज इन द कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो फर्स्ट वन हियर, इंक्रीज इन वेजेस। वेजेस मतलब क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बताओ मुझे वेजेस के। सैलरी, यस, सैलरी। हाँ सैलरी के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, तो सैलरी जब इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। सो हम लोग ये नहीं कह रहे यहाँ पे दैट यू हैव इंक्रीज द लेबर, लेबर नहीं बढ़े, लेबर जितने हैं उतने ही है वहां पे काम करने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों ने उनका सैलरी बढ़ा दिया तो योर कॉस्ट विल गोइंग टू इंक्रीज। ओके, सो व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द वेजेस, इट इज कॉल्ड वेज पुश इन्फ्लेशन। Wages are influenced by many factors beside the demand and supply forces। ठीक है, ट्रेड यूनियन, देखो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप लोग। ट्रेड यूनियन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द वेज रेट। Strong and the powerful trade unions succeed in securing higher wages for their members. Higher wages granted in the organized sector influence the wage rate in the unorganized sector too, resulting in an increase in the cost everywhere. Every increase in wages, however, need not be cost increasing. However, wages granted on the strength of increased productivity or of higher profit earned by the industry do not affect the cost. The burden of higher wages is usually shifted forward on the consumer in the form of higher prices unless the demand is highly elastic. Okay. So what they are saying कि सैलरी बढ़ाने की वजह से जब प्राइजेस बढ़ते हैं, लेबर की सैलरी बढ़ाने की वजह से प्राइजेस बढ़ते हैं, तो उसे कहा जाता है वेज पुश इन्फ्लेशन। अगेन व्हाट दे आर सेइंग दैट द ट्रेड यूनियन, एवरीबॉडी नो कि हर एक कंपनी में ट्रेड यूनियन भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो मैनेजमेंट के साथ डील करते हैं कि लेबर्स को कितना सैलरी मिलना चाहिए करके। ओके, so if the trade union is very strong, then they are able to succeed in increasing the salary of the labor। ठीक है, चलो अभी वो लोग ट्रेड यूनियन के नेगोशिएशन की वजह से वहां पे उनके इंटरफेरेंस की वजह से लेबर का सैलरी बढ़ गया। बस इज इट सो नेसेसरी कि अगर लेबर का सैलरी बढ़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा? कभी कभार ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स, मेजोरिटी टाइम इट हैपेंस कि लेबर का अगर सैलरी बढ़ा दिया तो कॉस्ट ऑब्वियसली ना उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो मतलब लेबर इज लाइक इनपुट टू अस, रॉ मटेरियल्स टू अस। ओके, तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन सम केसेस में इट वी कैन नॉट से दैट ऑलवेज देयर विल बी द इंक्रीज इन द कॉस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सैलरी हम लोग बढ़ा देंगे तो जो लोगों का जो काम करने का व्हाट वी कैन स्पीड रहेगा और जो डेडिकेशन रहेगा, दैट विल गोइंग टू इंक्रीज मोर,
और उसके वजह से क्या होगा, जो पहले एक लेबर 10 प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी दे रहा था, नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द सैलरी ही मे एबल टू गिव 12 प्रोडक्ट प्रोडक्शन, ठीक है, उतना मतलब वहाँ पे उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा काम करने का, जो वो प्रोड्यूस करके दे रहा है करके। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर वो उस हिसाब से जाता है, अगर सैलरी बढ़ने के बाद में, if the production is increases and efficiently without wasting the resources, if efficiently we are able to increase in the production, so we cannot say that there will be the increase in the cost, वहाँ पे cost में increase नहीं होगा। Okay, so this is what the exception, or and then again we have seen the reason कि like how the wages is being one of the reason for increase in the cost of production। ये समझा स्टूडेंट आपको, increase in wages कैसे cost push inflation create करेगा? Yes. Yes, 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 ma'am. ma'am. Now the next one here, increase in material cost। अभी material cost मतलब क्या है, देखो इंक्रीज इन वेजेस में Raw हम लोगों ने बेसिकली, material. हाँ यस, रॉ मटेरियल के बारे में, वेरी गुड। वेजेस में हम लोगों ने बेसिकली लेबर्स के बारे में बात किया। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। प्राइजेस ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कॉस्ट। Prices of the materials may increase either due to an increase in demand for this material or independently owing to national and international development. Increase in crude oil prices still recently is an example in this context. When the prices of basic inputs like energy, cement, steel, etc. increases, the effect is felt throughout the economy. An increase in prices of material, especially the basic input, alter the cost structure of all goods and services. Higher cost of production leads to upward revision of final prices. Our experience of the last 2 decades tells us that the prices of almost all material have gone up either due to market forces or administrative decision. Increase in material costs thus has become one of the important factors responsible for continuous upward movement of price level. Okay, so as we are talking about the material cost, material cost, it means whatever things, whatever material or we required in producing goods and services, so we are talking about their cost of production. Okay, अगर उनका prices बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली डिमांड मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल के फॉर्म में दिया है कि सपोज इफ द प्राइजेस ऑफ एनर्जी, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो चार्जेस है, जो वो लोग वहाँ पे काउंटिंग करते हैं यूनिट्स का, पर यूनिट इतना कॉस्ट रहेगा, अगर वो वहाँ पे बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली आपका एनर्जी का कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाएगा, इट विल गोइंग टू अफेक्ट थ्रू आउट द इकोनॉमी ऑल्सो, सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज वहाँ उससे वजह से अफेक्ट हो जाएगी, हर एक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। Like we can say the cement industry, steel industry, these all are working, like this all material requires in the manufacturing commodities. Okay, so या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में उसकी जरूरत पड़ती है, अगर उनका कॉस्ट बढ़ेगा देन अल्टीमेटली पूरा जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। So this is what here, increase in the material cost will lead to increase in the prices. Is this clear students? Second point also, yes, yes or no? Yes, मटेरियल ma'am. कॉस्ट के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन। चलो अभी ये तुम लोग मुझे समझाओ, प्रॉफिट मार्जिन की वजह से कैसे वहां पे प्राइसेस बढ़ेगा। When when manufacturer add profit on their product, when the producer will going to increase the profit margin, ठीक है, the profit previously he used to think on of their product. yes, where previously he used to get 10% of profit, now he decided now I really want 15% of profit, and to earn that profit what he will going to do here, he will going to increase the price of his commodity, and as per that what we can say, there will be the inflation in the economy, because जो अपना एमआरपी रहता है, किसी भी कमोडिटी का एमआरपी रहता है, उसके अंदर इंक्लूडिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब निकाल लेते हैं, टैक्स के लिए जितना खर्चा हो वो सब आ जाएगा, देन अगेन कितना प्रॉफिट चाहिए वो सबके हिसाब से एमआरपी डिसाइड किया जाता है। ओके, तो सपोज इफ द एमआरपी प्राइसेस हैव इंक्रीज, लेकिन गवर्नमेंट ने तो कुछ टैक्सेस में चेंज नहीं किया है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में चेंजेस किया हुआ है, लेकिन सडनली अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ पे उसने उस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहा है। ओके, so because of the increase in profit margin also your cost will going to we can say your prices will going to increase. Now the next one here, other factor, cost of production may increase when input prices go up due to scarcity, can be natural or artificial.
Natural calamities like drought or floods adversely affect the supplies of raw material, thus making them dearer. Firms operating with excess capacity, either because of monopolistic competitive market or any other reason, produce at a higher cost here. So what they're saying here, the another factors we can say, it will be like your artificial and the natural scarcity. Natural scarcity कब आता है? When natural calamities are occurring, कि मतलब जब फ्लड आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन का नुकसान हो जाएगा, शायद कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहां पे इनपुट एक्सपोर्ट एक्टिविटी के लिए कुछ सोर्स नहीं रहेगा, एंड एट दैट टाइम देयर आर चांसेस लाइक द रॉ मटेरियल प्राइसेस विल मे गोइंग टू इंक्रीज, और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है. ओके, एंड अदर वे वी कैन से आर्टिफिशियल में हम लोग क्या कह सकते हैं? आर्टिफिशियल में वी कैन से द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की लोग क्या करेंगे, वहां पे एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा खर्चा करेंगे अपना कमोडिटी को सेल करने के लिए. तो एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा खर्चा हो गया, तो चलो फिर मुझे तो मेरे कमोडिटी का प्राइस इतना रखना चाहिए. तो वहां पे मतलब दे विल गोइंग टू कॉम्पीट ईच अदर विद द प्राइजेस. ओके, सो दैट कैन बी ऑल्सो द सिचुएशन की जिसकी वजह से नहीं, इसका प्राइस इतना है तो मेरा प्राइस इतना रहेगा. मैंने इतना कॉस्ट, मैंने एडवर्टाइज प्रमोशन एक्टिविटीज के ऊपर इतना खर्चा किया है, मैंने मेरे कमोडिटी के ऊपर इतना यूनिकनेस लेके आया हूँ, पैकेजिंग के लिए मैंने कुछ अलग किया हुआ है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चार्जेस करूंगा. सो दैट एवरीथिंग विल गोइंग टू अफेक्ट योर cost of production and obviously the prices of the commodity. So this is what coming into your other factor. Okay, now we're going to talk about the diagram of cost push inflation. ये diagram में हमें क्या दिखाना है? We have to show that the cost of production increase होता है, उसके वजह से prices increase हो रहे हैं, and because of increase in the prices, how does the supply curve is shifting? Okay, that way we have to explain here. See, in the above diagram, इनिशियल प्राइस इज OP1. ठीक है, और ये जो OP1 प्राइस है ये क्या है? इट इज इंक्रीजिंग योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट, सो इनिशियली द प्राइस OP1 is determined by the interaction of demand curve. AD is the demand curve and AS is the supply curve, and they are intersecting each other at point A, and when we will going to correspond this point to the output level. So at OY1 level, your price level for that commodity is OP1. Okay, then AS2, AS2 नहीं, कहाँ पे मैं हाँ, ओके, उन्होंने और एक चीज कहा है कि Y1 दे आर कंसिडरिंग इट एज अ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, मतलब इससे ज्यादा अभी आउटपुट नहीं बन सकता है. दिस इज व्हाट दे अज्यूम. ओके, नाउ नेक्स्ट, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स अप टू द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कॉस्ट. अभी सप्लाई कर्व लेफ्ट में चला गया है बिकॉज वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है. ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, दैट कैन बी बाय मेनी रीजन, जैसे रॉ मटेरियल्स में उनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लेबर्स का सैलरी बढ़ चुका है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करके रखे हुए हैं, टैक्सेस बढ़ा के रखे हुए, सो एनर्जी बिल्स इंक्रीज हो चुका है. सो बिकॉज ऑफ दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैव इंक्रीज, और जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई थोड़ा कम कर देगा, एंड दैट योर सप्लाई का विल गोइंग टू शिफ्ट एट योर लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो इट विल गोइंग टू शिफ्ट एट लेफ्ट, and at this point, at this B point, you can see we will going to get the new equilibrium price. Why the new equilibrium price here? Because at this B point, this new supply curve and the aggregate demand curve are intersecting each other, and at this point OP2 is the price level and OY2 is the output level. अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया करके उसने सप्लाई भी कम किया, ठीक है, उसने कमोडिटी का आउटपुट भी वहां पे कम हो चुका, और साइड बाय साइड जो आउटपुट कम हो चुका है उसका भी एडवांटेज लेना है, देन ही विल गोइंग टू हैव द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, वो भी कवर अप होना चाहिए करके. ओके, so he will going to increase the price, that is OP2. Now again the next thing, then your aggregate supply is again shifted further, and your price is also increases from OP2 to OP3, and your output will also going to decrease here. So the increase in the prices, the reason for increase in the prices is because of cost push factor. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जा, मतलब सॉरी, प्रोडक्शन कम हो रहा है एंड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. सो आई थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई विल रादर फील कि आई थिंक डिमांड पुल इन्फ्लेशन चलेगा लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं चाहिए. व्हाट यू ऑल से? आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यस स्टूडेंट,
व्हाई आई एम सेइंग दैट कॉस्ट पुश नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वहां पे आप लोगों ने एक चीज नोट किया रहेगा, अगर कॉस्ट बढ़ता है तो क्वांटिटी आउटपुट भी कम हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्केर्सिटी क्रिएट हो जाएगा। तो एक तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई कम होगा तो अल्टीमेटली डिमांड भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी आ सकता है एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसकी वजह से डिमांड पुल की वजह से तो और भी ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे। Are you getting me? So it is always better to have the demand pull rather than having cost push inflation. What do you all say, student? बराबर है या नहीं? Ye- है ना? Okay. Yes, ma'am. Yes. Then the effects of inflation, I will going to say it in the next lecture. Till that time, I'll take your attendance. लेकिन ये पॉइंट समझा ना स्टूडेंट आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का? यस और नो? देखो, Yes, वन ma'am. मोर थिंग, डिमांड पूल एंड द कॉस्ट पुश, ये आप लोगों को अगर आप लोग आईएएस एग्जाम के बारे में प्लान करोगे तो वहां पे इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि देखो अभी थियोरेटिकल एग्जाम नहीं है तो आप बोलेंगे मैम क्यों असाइनमेंट दे रहे हो ऐसा, बट ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जो डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश है ना, उसका बस डायग्राम निकालो, एक डिमांड पुल का डायग्राम निकालो, कॉस्ट पुश का डायग्राम निकालो और उसका एक्सप्लेनेशन दे दो, बस उतना ही करो। और मुझे वो आप लिख के है ना जो अपने गूगल क्लासरूम है वहां पे मुझे सबमिट करो। ओके, सो जस्ट इट इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस कि मतलब आपको समझ में आना चाहिए, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इवन इसके ऊपर एमसीक्यू तो रहेगा, इसी एमसीक्यू के लिए आप बोलोगे मैम एमसीक्यू के लिए इतना क्यों लिखना है करके, तो दिस इज नॉट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फ्यूचर प्रिपरेशन। अगर आप लोग प्लानिंग करोगे ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए, इवन एमपीएससी यूपीएससी का भी रहता है थियोरेटिकल वन, तो उसके अंदर भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज आप ये दोनों डायग्राम एक बार निकालिए, उसका एक्सप्लेनेशन लिख के दीजिए अपने ओन वर्ड्स में, कोई मुझे बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अपने ओन वर्ड्स में लिखिए या फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे लिख के दीजिए, बट डू दैट असाइनमेंट। विल यू डू दैट? व्हाट यू ऑल से? करोगे सब लोग? Yes, ma'am. गूगल क्लासरूम में मुझे सबमिट करो। ओके Okay, ma'am.